Permanent tissue. The tissue is a group of physically linked cells, which together carry out a particular function or functions. Specialized cells are able to divide the labor by grouping as tissues. We look at a variety of simple tissues and their functions. The simple tissues are one of three types: collenchyma, sclerenchyma, and parenchyma. Parenchyma is the most fundamental and simple tissue of plants. The cells can be divided as one of three types: chlorenchyma, arenchyma, or storage tissues. Chlorenchyma contains chloroplasts and is commonly found in the leaves and tender tissues of the plants. End spaces are present between cells in the arenchyma, a type commonly found in hydrophytes. Storage tissue is responsible for the storage of food materials and is found in tubers and rhizomes. Collenchyma is also a simple living tissue. Collenchyma provides mechanical support to the growing parts of the plants, including the young stem and the petiole of the leaf. Sclerenchyma, the third simple tissue, consists of long narrow cells with thick and lignified cell walls which have either a few or numerous pits. These cells are usually dead. These are commonly found in the cell walls of the nuts or the pulp of fruits such as pears. Summary: the tissue is a group of physically linked cells that are specialized for a particular function or functions. The permanent tissues of the plants are simple tissues and complex tissues. The simple tissues of plants are one of three types: collenchyma, sclerenchyma, and parenchyma. Now you have watched these videos of simple tissues. The simple tissues are of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. अगेन परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमने कल पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और उसके बाद जो है their locations and their functions. Now here is a one flow chart regarding the simple permanent tissues. Simple permanent tissues are of three types: parenchyma, sclerenchyma, and collenchyma. तो पैरेनकाइमा के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। पैरेनकाइमा में तीन टाइप्स होते हैं। फंडामेंटल सिंपल टिश्यू, इसे सिंपल पैरेनकाइमा भी कहा जाता है। देन क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा आर द पैरेनकाइमा that contains chlorophyll in it. Therefore these chlorenchyma are found in the leaves of tender tissues. क्योंकि क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल्स होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स में होती है। इसकी वजह से क्लोरेनकाइमा लीव्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इट कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? These are the chloroplasts are the type of plastid which contains the green pigment. The name of green pigment is, what is the name of green pigment present in this chloroplast? Chlorophyll. That helps for the process of photosynthesis. Okay. अब थर्ड टाइप है पैरेनकाइमा सेल का, एरेनकाइमा। तो दिस एरेनकाइमा कंटेन्स द एयर स्पेसेस, उसमें एयर स्पेसेस ज्यादा होते हैं बलून के जैसे, एंड दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल। तो एरेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट मींस
the plants which can be live in or on the water, पानी के अंदर या पानी के सतह पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट, एग्जांपल लोटस। और चौथा टाइप दिया है स्टोरेज टिश्यू। द स्टोरेज टिश्यूज आर द सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू। These are found especially in the tubers and rhizomes. Tubers example potato जो है ये tubers है। What do you mean by tubers? Tubers are the fleshy underground stem or root that is an organ of vegetative propagation and food storage. तो इसमें food store होता है पोटैटो में, ये ट्यूबर्स इससे कहा जाता है। और rhizome is also the type of stem and which can forms sends the roots and shoots from the nodes. जैसे कि जिंजर आपने देखा होगा, जिंजर देखा है सबने। तो ये जो स्टेम है इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली। ये स्टेम कैसे ग्रो होता है? It grows horizontally underground the soil and it is a part of sexual reproduction and food storage. So it consists of nodes, जहां पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर पे देखिए, ये जो राइजोइट्स होते हैं इसे नोड्स होते हैं, and these nodes grows into the roots and stem. इस roots नोड्स जो है इसको अगर हम सॉइल में ग्रो करेंगे तो इस नोड से क्या होता है? प्लांट ग्रो होता है जिसमें से रूट्स और शूट सिस्टम डेवलप होती है। रूट्स और शूट सिस्टम डेवलप्स परपेंडिकुलर एंड दिस राइजोम्स इट ग्रोस हॉरिजॉन्टल इन द सॉइल। सॉइल में ये कैसे ग्रो होता है? हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है और इसमें रूट और शूट सिस्टम इससे परपेंडिकुलर डेवलप होती है। तो ये तो हो गया हमारा पैरेन्काइमा के बारे में। अब देखेंगे हम कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है इट आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। मेन फंक्शन इज टू गिव द सपोर्ट्स टू द प्लांट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विथ इवनली थिकन वॉल। अनइवनली इसके वॉल जो है थिकन होती है लेकिन अनइवन होती है, कहीं पे भी थिक होती है, कुछ पार्ट जो है यहाँ पे थिन होती है। तो कोलेनकाइमा जो है सिंपल लिविंग टिश्यूज है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द ल्यूज। ल्यूज के पेटियोल को भी सपोर्ट करता है और ये इसपे वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब स्लेरेनकाइमा जो है, स्लेरेनकाइमा आर स्पेशली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। These also have the supportive in functions and consist of thick wall. इनके वॉल जो होती है बहुत ही थिक होती है जिसकी वजह से सेल के अंदर स्पेस बहुत ही कम होती है एंड यूजुअली लिग्निफाइड सेल वॉल जो होते हैं थिक होती है, उसमें जो है सीमेंट लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यूजुअली डेड सेल से बनता है। अब स्लेरेनकाइमा के हमने कल 4 पार्ट टाइप्स भी देखे थे। It consists of long and narrow cell with a lignified cell wall, and these are found in the cell walls of nut and pulps of pear. जैसे कि हमने डायग्राम में देखे हैं, कोकोनट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ये भी किससे बनता है? हमारे स्लेरेनकाइमा से बनता है। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। आज भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। Plant tissues. The plant body is composed of mainly 3 types of tissue systems: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. This classification is based on the structure of cells and location of the tissue. A structure of cell and location, structure और location के अनुसार जो है प्लांट टिश्यू जो है इनके 3 टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चरली इपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर टिश्यू। कल हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं, यहां तक हमने पढ़ा है।
अब स्ट्रक्चर के अनुसार टिश्यूज के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें इपिडर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर। इसके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। Epidermal tissue is composed of a single layer of cells. It forms the outermost layer of the plant body. इपिडर्मल जो टिश्यूज है, जैसे कि हमारे बॉडी में इपिथेलियम होता है स्किन के अंदर, तो इसी तरह प्लांट का पूरा बाहर का हिस्सा जो है इपिडर्मिस से बनता है। इसमें इपिडर्मल सेल होता है। अब डायग्राम में भी आप देख पाएंगे आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये सेल का, इट इज मेड अप ऑफ इपिडर्मिस। ये किससे बना है? इपिडर्मिस से बना है। एंड इट इज सिंगल सेल लेयर थिक। ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, सेल की एक ही लेयर होती है और एक ही सेल के लेयर से ये जो है इपिडर्मल टिश्यूज बनते हैं। Ground tissues form all the tissues present in plants, with the exception of the epidermal and vascular tissues. For example, cortex, pith, mesophyll, and so on. अब ग्राउंड टिश्यू जो है, अब बाहर की जो लेयर है यहाँ पे देख पाएंगे आप, डायग्राम में अच्छी तरह से देखना है। एक यू गो आउटसाइड। बाहर की जो लेयर है ये इपिडर्मिस है और अंदर जो है ये वास्कुलर टिश्यूज है। जहां पे ब्लू कलर का सर्कल आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो है वास्कुलर, और इनके बीच में जो पार्ट्स है दे आर मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ये किससे बना हुआ है? ये ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। हाँ, तो ग्राउंड टिश्यू अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है। पहले ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है उससे पढ़िए आप। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके सभी जो है अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से नहीं होगा। ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, नॉट मैथ और फिजिक्स। जस्ट दैट्स व्हाई रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मेनी न्यू वर्ड्स विल बी इंट्रोड्यूस टुडे इटसेल्फ आल्सो। तो ये ग्राउंड टिश्यू आपको समझ में आए। Vascular tissues are made up of a combination of complex tissues, xylem and phloem. तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। स्ट्रक्चरली हमने 3 प्रकार के टिश्यू देखे। ये है हमारा इपिडर्मल। ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये इसमें लिखना इपिडर्मल। और ये बीच वाले जो है दीज आर द ग्राउंड टिश्यूज। बीच वाले कौन से टिश्यूज है? ये ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ बीच में आपको दिखाई दे, कर्सर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो है दीज आर द ग्राउंड टिश्यूज, इसे हम जी। और अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम टुगेदर फॉर्म्स द वास्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम दोनों से वास्कुलर टिश्यूज बनते हैं, जिसे हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज दीज आर द सिंपल टिश्यूज, जैसे स्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा से बनते हैं। और जाइलम और फ्लोएम, इसमें तीनों प्रकार के सेल्स होते हैं। ओके, Which of these structures are modifications of the epidermal tissue? Click the correct options and then click Evaluate. अब देखो इपिडर्मल टिश्यू जो है, तो इपिडर्मिस में अलग अलग तरह के भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं। जैसे कि इपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, आउटर पार्ट में हमने देखा है। फिर रूट हेयर्स जो है, रूट में जो इपिडर्मिस होते हैं उसमें हेयर्स होते हैं। और ट्राइकोम जो है ये भी पार्ट होता है हमारा इपिडर्मिस का। इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो स्टोमेटा, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसके बारे में That's correct. आगे पढ़ेंगे हम लोग। The guard cells of stomata, root hair, and trichome or stem hair are modified epidermal cells. Stomata help in gaseous exchange. Root hairs increase the area of absorption, and trichomes reduce water loss. ओके,
अहो कुठले की बारे में डिटेल में पढ़ना है। यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल जो है मैं आपको तो भेज दूंगा, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू स्टडी, टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। इपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू, ये 3 प्रकार के टिश्यूज है, हमने पढ़ा है। जैसे इपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है, ट्राइकोम्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। एंडार्च एंड एक्सार्च अरेंजमेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। फ्लोएम, इसमें प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम 2 टाइप्स है। वास्कुलर बंडल्स के 2 टाइप्स होते हैं, कोनजॉइंट कोलैटरल बंडल्स एंड कोनजॉइंट बाइकोलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक बंडल। तो इस तरह से जो है हमें टिश्यूज के बारे में डिटेल में हमें इसमें पढ़ना है। तो टिश्यू सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा, इपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू, 3 प्रकार के सिस्टम से अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो पहले पढ़ेंगे हम इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसे इपिडर्मिस जो है, इपिडर्मिस इज द सरफेस टिश्यू एंड दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? सिंगल लेयर, तो इनकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती। इपिडर्मल टिश्यू जो है ये ज्यादा थिकन नहीं होते, सिंगल लेयर होते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर। कुछ कुछ पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते नहीं होते, लेकिन क्यूटिकल, जैसे कि लीफ जो है, लीफ पार्ट जो है
इसमें इपिडर्मिस के ऊपर आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे। हेयर्स में जो इपिडर्मिस है, सॉरी रूट्स में जो इपिडर्मिस है, इसमें आपको हेयर्स दिखाई देंगे। एंड क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इपिडर्मल टिश्यू जो है इसमें क्यूटिकल भी होता है। इट इज द वैक्सी थिक कवरिंग which is present on outer surface of the epidermis. It prevents the loss of water and it is not found in the root. क्योंकि जो है इसमें ट्रांसपीरेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, डू यू नो द ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो वेपर्स के फॉर्म में प्लांट से वाटर जो है वो इवेपोरेट्स होता है, बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है इसमें वाटर लॉस होता है, इसको रोकने का काम करता है क्यूटिकल। एंड क्यूटिकल ये वैक्सी कवरिंग होता है जिसकी वजह से इट प्रोवाइड्स द वाटर रेजिस्टेंस। जैसे हम बारिश में जाते हैं तो रेनकोट या छाता पहन के जाते हैं जिसकी वजह से हम गीला नहीं होते। लेकिन प्लांट जो है, बारिश में प्लांट भी पानी के अंदर भीगते हैं जिसकी वजह से उसके पत्ते सड़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है एंड दिस क्यूटिकल लेयर इट फॉर्म्स द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला के जैसे काम करता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो बारिश में भी नहीं भीगते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर द स्मॉल पोर्स दीज फाउंड इन द स्टेम एंड ल्यूज। इपिडर्मिस जो होता है, स्टेम और ल्यूज, वहां पे स्टोमेटा होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। हेयर जो है वो दो प्रकार के हेयर्स होते हैं। हेयर्स आर प्रेजेंट स्पेशली इन द रूट्स। तो रूट हेयर जो है, रूट हेयर और ट्राइकोम, तो रूट हेयर जो है वो रूट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट्स रूट में जो इपिडर्मिस है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट हेल्प्स टू एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ट्राइकोम जो है इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम, यानी कि स्टेम में जो इपिडर्मिस है उसमें ट्राइकोम होता है और रूट्स में जो इपिडर्मिस है उसमें रूट हेयर्स होते हैं। इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस एंड सीक्रेट्स द सम केमिकल सब्सटेंसेस। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा के बारे में हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। दीज आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द epidermis and which helps in the process of transpiration and also in the gaseous exchange. अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखना है आप लोगों को। These are the stomata are made up of two guard cells. स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। These are the two guard cell और गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग है, that is called as stomatal aperture. The inner wall of the guard cell and outer wall of the guard cell. This one is the outer wall of the guard cell and this is the inner wall of the guard cell and aperture. इन तीन हिस्सों से बनता है हमारा गार्ड सेल और गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट एंड these guard cells are surrounded by the epidermal cell. तो गार्ड सेल के बाहर क्या है? epidermal cell है। इस तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। Usually some epidermal cell present around the guard cell. Guard cell के बाहर कुछ epidermal cell भी present होते हैं। They are modified shape and specialized cell and they are called as accessory or subsidiary cell. तो इसका अर्थ क्या है कि गार्ड सेल के बाहर जो epidermal cells होते हैं इससे हम एक्सेसरी और सब्सिडरी सेल भी कहा जाता है। तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज to regulated by the stomata and this guard cell का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। the guard cells are open during the day times. जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरता है प्लांट लीव्स के ऊपर, लीव्स में जो एपिडर्मिस है इसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, तो सनलाइट जैसे ही गिरता है तो एक गार्ड सेल ओपन होते हैं। तो गार्ड सेल जब ओपन होते हैं तो उसी दौरान उसमें गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन होता है। तो therefore the process of transpiration, ये भी हमने पढ़ा है, the process of transpiration occurs only during day time और नाइट टाइम में जो होता है वो रूट प्रेशर होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो डे टाइम ही क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट की वजह से ये गार्ड सेल ओपन होते हैं और जैसे ही देयर ऑकर द सनसेट, एट द सनसेट द गार्ड सेल क्लोज अगेन। अब है ग्राउंड टिश्यू। इपिडर्मिस के नीचे जो होता है, इपिडर्मिस और वास्कुलर टिश्यूज, इन दोनों के बीच में जो टिश्यूज होते हैं इसे कहते हैं हम ग्राउंड टिश्यू।
अब ग्राउंड टिश्यू का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे माउस के कर्सर के ऊपर देखिए, at the outermost part there is the upper epidermis and at the lower part there is the lower epidermis. ये ल्यूज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए। तो ल्यूज स्ट्रक्चर में जो है हमारे ग्राउंड टिश्यूज कैसे होते हैं, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग, और इसमें जो है लोअर एपिडर्मिस में आप देख पा रहे हैं स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गार्ड सेल, और इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में है हमारा ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू जो है इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, दो, एक तो होता है हमारा पैलिसेड मिजोफिल और दूसरा है स्पॉन्जी मिजोफिल, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। पैलिसेड मिजोफिल जो होता है दे आर द कॉल्यूमनर सेल। पैलिसेड जो है ये कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होती है। लेकिन जो स्पॉन्जी मिजोफिल होता है, स्पॉन्जी मिजोफिल यानी कि अपर एपिडर्मिस के नीचे है पैलिसेड मिजोफिल और उसके नीचे है स्पॉन्जी मिजोफिल। स्पॉन्जी मिजोफिल के सेल जो है दे आर रैंडमली अरेंज। जैसे कॉलम पैलिसेड मिजोफिल में जो है कॉलम लाइक सेल है, उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, लेकिन स्पॉन्जी मिजोफिल के सेल जो है वो रैंडमली अरेंज होता है और इनके बीच में जो एयर स्पेस होती है ये भी बड़ी होती है। The thin wall chloroplast containing tissues present in the leaves, they are called as spongy or are the mesophyll. Spongy mesophyll, इसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, और पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी। तो ये जो हमारा ग्राउंड टिश्यूज होता है, ग्राउंड टिश्यूज आर स्पेशली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल। इसमें कौन से सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा। ल्यूज में सबसे ज्यादा होंगे उसमें क्लोरेनकाइमा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल्स होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। अब थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मिस, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू और बीच में है हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि बनता है जाइलम और फ्लोएम से। जिस जाइलम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्शन ऑफ वाटर मटेरियल and phloem in the food material. The phloem tissue also store the food material. अब जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी आपको रिपीट अच्छी तरह से पढ़ना है। तो जाइलम टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। ट्रकीट्स, जाइलम ट्रकीट्स भी इसे कहते हैं, वेसल, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट। अब ट्रकीट्स के बारे में देखिए। द ट्रकीट्स आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल डेड सेल्स, थिक इनर वॉल्स एंड नो प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि डेड होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, द लिविंग कंपोनेंट्स। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, बट ये सेल डेड होने की वजह से इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। और दूसरा है जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स ये भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इन्हीं से मल्टी सेलुलर इसका अर्थ क्या है, इसमें सेल की संख्या ज्यादा होती है। एंड द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। इसके सेल जो है, इसकी सेल वॉल थिक होती है और बीच में जो है वो कैविटी होती है, यानी कि खुली जगह होती है जिसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके। देन जाइलम फाइबर्स, लास्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर द थिक वॉल, सभी थिक वॉल है इसमें, एंड मोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द सेल ल्यूमेन। सेप्टा सेपरेट्स द फाइबर्स। इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स के बीच बीच में, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाता, जाइलम फाइबर्स जो है